Hello, smart and little learners. I'm Anjana and I'm going to start with class 7 maths today. और हम start करने वाले हैं chapter number 2, which is fractions and decimals. तो start करते हैं. So let's start with warm up first. And what do you observe here? This is proper fraction और ये आपका improper fraction है. हमेशा एक proper fraction मतलब less than 1. That means 9/16 आपका 17/8 से smaller. Come on to the second part. Here we have two fractions. One method is हम इसको cross multiply करके compare कर सकते हैं. Second method is हम इसके denominators को same कर सकते हैं, finding the LCM. So try any method you like. Come to the next question. Arrange the fractions in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आपने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है बिकॉज दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस. सो वील टेक द एलसीएम ऑफ 5, 10, 3 एंड 50. एलसीएम आएगा 30. तो इस 30 एलसीएम से हम सारे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. तो 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. Right, so 3/5 multiply by 6 and you get 18/30. Second is denominator 10. 10 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. वेरी गुड. तो हमने लिखा 7/10 and we multiply by 3, we get 21/30. Third number 1/3. 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 10 से. So 1/3 बन जाएगा 10/30. Got it? And the next one 11/15. You know 15 2 times is 30. तो फटाफट 11/15 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 22/30. अब हमारे पास 10/30, 18/30, 21/30 and 22/30. ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स थर्ड नंबर आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा. दैट इज 1/3 इज स्मॉलर देन सेकेंड नंबर 18/30 विच इज 3/5. ग्रेट. एंड थर्ड नंबर क्या होगा? 7/10 एंड आफ्टर दैट you get 11/15. So this is how you arrange the numbers in ascending order. In the same way, यहाँ पर फिर हमने इन denominators का LCM लेना है and we are going to follow the same pattern. Let's move further. Come at next question. Find the sum of 16/11 and 11/40. फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको ऐड करेंगे और जब आपके पास सम आ जाएगा एंड व्हाट विल यू डू? फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस यू हैव टू सबट्रैक्ट 1/7. दैट मीन्स -1/7 इसमें से करेंगे. गॉट इट? एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स. यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 है. क्या बोलते हैं इस प्लेस को? दैट्स कॉल्ड 1/10. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 6 विल बी 6/10. वेरी नाइस. और हम आते हैं यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. विल राइट 8/100 एंड यहाँ पर 8/10. गुड. And the next question is convert the following decimals into fractions. Decimals को जो fractions में convert करना है तो हम बस ये देखेंगे कि decimal के बाद कितने places हैं. 2 places. So we are going to remove the decimal और इसके नीचे हमने लिखा 100 and here we remove the decimal and we write 1000. 1000 क्यों लिखा है? कौन बताएगा? Because यहाँ पर decimal के बाद 3 places हैं and over here again we have 3 places, so we are going to write upon 1000. और इसमें से जो भी simplest form में convert होगा
इसको हम convert करेंगे. Like here, it will not get converted in simplest form. So this remains the answer. यहाँ दोनों numbers को हम divide कर सकते हैं 2 से. And it will become 2 2s are 4, 2 3 times is 6, 2 9 times is 18, and 2 7 times is 14, and upon it will become 500. In the same way, here also we'll divide by 2 and we get 133 upon 500. Got it? Now let's move further. So children, we have already learned how to compare the fractions. पहले learn किया है ना, दो fractions को कैसे compare करते हैं, कौन सा fraction बड़ा है, कौन सा fraction छोटा है, and then we have learned उनको add कैसे करना, plus, minus, multiply, divide, चारों mathematical operators use करने सीखे हैं हमने. और उसके बाद in proper fraction the denominator is always greater than numerator. और अगर improper fraction होता है तो numerator denominator से बड़ा होता है. अब 3/4 लिखा है आपने, तो यहाँ numerator छोटा है, denominator बड़ा है, right? तो ये कौन सा fraction हुआ? Proper fraction. और अगर हमने लिखा 11/5 तो 11/5 कैसा fraction है? This is improper fraction because यहाँ पर numerator डिनोमिनेटर से लार्जर नंबर है. गॉट इट? अब किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. तो हमने 11 को डिवाइड किया 5 से एंड वी गेट 5 2 times is 10, रिमाइंडर इज 1. तो यहाँ पर 2 1/5 ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन. करेक्ट? Now let's move further. Fractions having same denominators. क्या बोलते हैं उनको जब denominator same होते हैं? They are like fractions. Here we have same denominator. तो ये तीनों fraction like fractions होते हैं. ठीक है? और unlike fractions क्या होते हैं? जब हमारे denominators different होंगे तो हमारे fractions क्या हो जाएंगे? Unlike fractions. Now we come here. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन बनाना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. क्या फ्रैक्शन दिया है आपको? 100/7. We'll divide 100 by 7 and we get 14 2/7. This becomes your mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? जिसमें एक होल नंबर हो और साथ में एक proper fraction. Got it? अब next part of the question है write two fractions equivalent to 4/9. तो 4/9 fraction लिखा, numerator और denominator को same number से multiply किया. First time हमने लिया 2, 3, 4, 5 कोई भी number ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके आपको नया फ्रैक्शन मिलेगा. लाइक हमने 4/9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 12/27. नेक्स्ट टाइम हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन गया 16/36. गॉट इट? सो दीज आर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/9. करेक्ट? Now let's move further. We'll take more example. 5/8 part of the roll of the cloth is used for stitching a night suit and 3/5 part is used for stitching a skirt. तो क्या हो रहा है? 5/8 part एक बहुत बड़ा रोल है क्लॉथ का, उसका 5/8 part हमने नाइट सूट बनाया और उसका 3/5 part हमने स्कर्ट बनाने के लिए यूज किया. Which requires more cloth, जिसके लिए ज्यादा कपड़ा यूज हुआ. So you are going to compare 5/8 and 3/5. Now the denominators are different. यहाँ denominator 8 है, यहाँ 5 है, and we will make them equivalent by taking the LCM of 8 and 5. 8 and 5 का LCM होता है 40. तो हमने LCM लिया और यहाँ पर 5/8 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया जिससे डिनोमिनेटर 40 बना. सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/5, इसका डिनोमिनेटर 5 है
तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 8 से, राइट, और 8 से मल्टीप्लाई करके हमारा नया फ्रैक्शन बना 24/40। अब एक फ्रैक्शन मिला 25/40, दूसरा फ्रैक्शन मिला 24/40, which is the bigger one? The first one. Very nice. So we say 25/40. That means 5/8 is the bigger part, and this is your statement, right? So we say that more cloth is required for stitching the skirt. Now we come to the next question. 1/4 liter of milk is used for making tea and 3/5 liter of milk is used for setting a curd. तो हमने 1/4 liter of milk तो यूज किया टी बनाने के लिए and we use 3/5 of the milk for making curd. दही खाते हैं ना आप लोग? Now find the total quantity of milk used. तो कुछ दूध आपका टी बनाने के लिए यूज हुआ और कुछ मिल्क आपका कर्ड बनाने के लिए यूज हुआ. टोटल मिल्क कितना यूज हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए हमने पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया. 5 4 times 20. सो वी राइट 1/4. इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. इसी तरह 3/5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया. सो वी गेट 5/20 plus 12/20 and your answer becomes 17/20. So 17/20 part of the milk is used for the two things, curd के लिए and tea के लिए. Got it? So let's start with the exercise and we are going to start with the first question. The first question is 7 minus 7/9. हमने 7 के नीचे 1 लिखा, माइनस 7/9. एलसीएम क्या आया? एलसीएम बना 9. वेरी गुड. हमने लिखा 9 एंड 7 9 टाइम इज 63 minus 7, राइट, एंड हमें मिला 54/9. एंड व्हाट इज 9? 6 times 54. सो वी कैंसिल इट और हमारा आंसर आ गया 6. करेक्ट. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 16 और 25 का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे. सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 एंड दिस विल बी एलसीएम विल बी 1 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15. वेरी गुड. एंड देन यू आर गोइंग टू डू द सबट्रैक्शन. और एक एडिशन का क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आपको दिए हुए हैं 11 and 7. एलसीएम क्या होगा बेटा? एलसीएम विल बी 77, राइट. तो हमने यहाँ पर 77 लिखा. 11 7 टाइम इज 77. 7 4 टाइम इज 28, राइट. यहाँ हमने लिखा 28 प्लस 7 11 टाइम इज 77. अब इस 11 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमें मिला 55. करेक्ट. एंड वी आर गोइंग टू एड इट. 8 plus 5 is 13. So it will be 83/77. अब या तो आप इसको यहीं छोड़ेंगे और बिकॉज दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. एंड 77 1 टाइम इज 77 एंड देन वी गेट 6/77. दिस बिकम्स योर आंसर. गॉट इट. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 3 painters completed 1/7, 2/7, 1/5 and 3/10 of the work each of 3 consecutive days. Now find out which painter did the most work. So what will you do? You are going to compare the 3 fractions. इन तीनों में से कौन सा fraction सबसे बड़ा है? And for that आप सबसे पहले इसका LCM लेंगे, है ना? और LCM लेकर इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है. Come to the next one. The length and the breadth of rectangle are given. क्या दिया हुआ है? ये लेंथ है 12 whole 4/5 and 10 whole 1/4. Now you have to find the perimeter. Perimeter का फॉर्मूला याद है आपको? It was 2 times L plus B. Very good. We write down 2 times. What is the length? It is 12 whole 4/5 plus 10 whole 1/4. And we will solve it. सबसे पहले इसको हम improper में convert करेंगे. Okay?
तो आपको मिला 2, 12, 5 टाइम is 60, 60 plus 4 is 64 upon 5 and this is 10, 4 time is 40, 40 plus 1 is 41 upon 4. Now let's take the LCM, इन दोनों का LCM लेंगे, 5, 4 time is 20, तो ऊपर नीचे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. ओके, एंड व्हाट विल यू गेट? लेट्स सॉल्व इट. 2 होल एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह आपका 20 आ जाएगा बेटा. 4, 4 टाइम इज 16, 1 कैरी, 6, 4 टाइम इज 24 plus 1 is 25 and here it is 4, 5 time is 20, so it is 205. Correct? And let's cancel it. It becomes 10 here and यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 200 plus 200 becomes 400. This will be 61 upon 10. तो आपका आंसर आएगा 46.1 meter because it is given in meters. Correct? Now let's look at the next question. The length of the rope is this much, out of which 7 1/2 meter of the rope is used for fixing the banner. Find the length of the remaining. जब remaining word आ जाता है तो आपने याद रखना है हम यहाँ पर subtract करते हैं, right? तो इसमें से इसको subtract करेंगे and we will get the answer. 13 whole 1/5 minus 7 whole 1/2. Correct? Let's look at the next one. A can contains 2.5 liter of oil in which 1 whole 4/5 liter of oil is used for making potato chips. तो टोटल ऑयल आपको दिया हुआ है 2.5 लीटर्स एंड उस ऑयल में से ये ऑयल यूज हो गया. द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑयल इज रिमेनिंग इन द कैन. सो व्हाट विल यू डू? 2 1/2 minus 4 1 4/5. राइट, हमने इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. 2 2 टाइम इज 4 plus 1 5/2 minus 9/5. And what is the LCM? LCM becomes 10. 2 5 time is 10 and 5 5 time is 25 and similarly 5 2 time is 10 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18. राइट, हमें मिला 7/10 liters. इतना ऑयल आपका केन में बचा. करेक्ट? नाउ वी मूव फर्दर and we come to multiplication of fractions. तो addition और subtraction के questions आपने अभी किए. Now we are going to the situation where we will learn to find the product of the fraction. So here we are going to study how the product of the fraction works. हम दो fraction को कैसे multiply करते हैं. अब सबसे पहले लिखा हमने 4 times of 1/5. इसका मतलब हुआ कि 1/5 हमने 4 times add किया. Right? तो ये आपका बन गया टोटल 4/5. कैसे? 1/5 ये रहा, फिर एक और बार 1/5 1/5 1/5. राइट, तो जब आपका 1/5 4 टाइम्स आ जाएगा that will become 4/5. Got it? So this way we are going to get 4/5. Okay, this becomes your answer. Now next time we have 5 times of 1/6. तो जब 5 times of 1/6 आया that means 1/6 को हम 5 times add कर रहे हैं and we get 5/6 as answer. Correct? Now all the fractions are rational number. This thing you have to remember. But the rational number may or may not be fractions. क्योंकि जो rational number होते हैं उसमें negative fractions भी आते हैं और positive fractions भी. Got it? And all natural numbers, whole numbers, integers, ये सब rational number का part होते हैं. Correct? इसका मतलब हम हर fraction को rational number बोल सकते हैं और हर rational number को fraction नहीं बोल सकते. Now in the same way when you talk about the product, यहाँ पर 3 times of 2/7 आया. तो हम क्या करेंगे? 3 से न्यूमरेटर 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, आपका प्रोडक्ट मिला 6/7. In the same way we have taken another example, 11 times of 4/9. अब यहाँ 11 और 4 को मल्टीप्लाई किया, हमें 44 मिला.
और डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा। और जहां आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। गॉट इट? नाउ वी जनरलाइज द अबव रिजल्ट। कैसे जनरलाइज करेंगे कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट निकालना है या एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर के साथ हम जो न्यूमरेटर है उसके साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 4 टाइम्स 20 प्लस 121, ये बना 21/4। अब इस न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट, और हमें जो न्यूमरेटर मिला वो मिला 63/4। एंड ये अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर से हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, राइट। यहाँ देखते हैं 4 टाइम्स ऑफ 2 होल 2/7। फर्स्ट स्टेप, इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया और ये बना 64/7। और इस 64/7, बिकॉज दिस इज अगेन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, so what will you get? You'll convert it into mixed fraction and this becomes 9 whole 1/7. Got it? Talking about this fraction as an operation. Now let's consider this figure, and each shaded part represents 1/3 of 1. Got it? Now we put them together, 1/3 and 1/3. This becomes 2/3 of the fraction. Got it? So this is how we find the product. 2 multiply 1/3. यहाँ 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। अब लेते हैं एक होल नंबर दिया है और हमने निकालना है 1/3 ऑफ दिस होल नंबर 2। तो क्या करेंगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में 2 मिला, गॉट इट, और डिनोमिनेटर में हमारा 3 आ जाएगा। सो वी गेट 2/3 of the given whole. Now let's come to the next example. इस फिगर में हम देखते हैं यहाँ हमें 1 part of 4 are shaded. So this is 1/4, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है. Okay. अब क्वेश्चन है 1/4 of the whole. This is 1/4. And अगर आपसे पूछा जाता है 1/4 of 3, so it will be 3 parts of the whole and it becomes 3/4. So we write it as 3/4. Now what is off? Off का मतलब होता है multiplication. तो अगर आपसे बोला जाता है 1/5 of 10, तो जहां ऑफ लिखा है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में and it will become 1/5 multiply 10. and जब हम इसको simplest form में कन्वर्ट करेंगे 5 2 times is 10, right? So we get this as 2. Similarly, एक और लेते हैं एग्जाम्पल 1/7 of 21. तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, so we write 1/7 multiply 21. So 7 3 times is 21 और हमें आंसर मिल गया 3. Correct? Now we talk about absolute value of the rational number. जब हम किसी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, इसका मतलब उसका नेगेटिव साइन हम एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, गॉट इट। अगर हमने कोई भी रैशनल नंबर लिखा तो उसका आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स वहां पर हम ना पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, एंड दिस विल बिकम अ पॉजिटिव नंबर। So we say a positive rational number is always greater than a negative rational number, लेकिन दोनों की absolute value same होंगी। That means अगर मैंने लिखा -7/3 and हमने लिखा 7/3, तो 7/3 बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं -7/3 की absolute value या 7/3 की absolute value, तो दोनों केस में हमें सेम आंसर मिलेगा। करेक्ट? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमने एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लिया। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्रेस द आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन।
6 multiply 7 whole 1 upon 6. पहला step इस mixed fraction को convert करेंगे improper fraction में. So this becomes 43 upon 6. अब ये 6 और ये 6 cancel हो गए. You are only left with 43. Take another example. 8 whole 4 and 3 upon 7. Okay, so 8 multiply 4 whole 3 upon 7. Here we are first going to convert it into improper fraction. And what do you get? 8 और 31 को हमने multiply किया, divided by 7, and then whatever result you get, हम उस result को convert करेंगे फिर से mixed fraction. Take more examples here. We have 2/3 of 72. Of का मतलब multiplication. तो हमने इस साइन को multiply में convert किया and then you cancel and you get 48. इसको हम simplify भी कर सकते हैं. 3 2 time is 6, 3 4 time is 12, 24 2 time becomes 48. Correct? एक और example देखते हैं. यहाँ पर 3 upon 4 of 9 whole 1 upon 6. इस 9 whole 1 upon 6 को पहले हमने convert किया improper fraction में. 9 6 time is 54 plus 1 is 55. You get 55 upon 6. 3 upon 4 multiply 55 upon 6 and हमने फिर उसको numerator को numerator से multiply किया, denominator को denominator से multiply करके, और फिर हमें जो आंसर आएगा हम उसको mixed fraction की फॉर्म में convert करते हैं. Correct? Now we move further. Which of them is bigger? हमें एक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है और इस दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है और दोनों को कंपेयर करना है. फर्स्ट वी राइट 1 upon 7 of 204 and we get 12. Got it? Then we have 1 upon 19 of 228 and on solving we get 12. Oh, we got the same values. दोनों आंसर सेम आ गए. So we say both of them are equal. Got it? Let's move further. And we come to next example. यहाँ क्या दिया है? A water can hold 15 liters of water. तो एक water की can है, उसमें 15 liters water है. 1/3 of water in the can is used for filling water bottles to keep in the refrigerator, and 2/5 of water is used for cooking. The question is how much water is filled in the bottle? कितना पानी बॉटल में भरा गया है? 1/3 of 15 liters. We write 1/3 of 15. That means 5 liter water आपकी bottles में fill किया और fridge में लगाया. And then how much water is used for cooking? 2 upon 5 of 15. And we solve it. We get 6 liters. Got it? And उसके बाद question में है कितना water बचा. तो कितना बचा निकालने के लिए total water was 15. 15 में से 5 लीटर फ्रिज में गया, 6 लीटर्स कुकिंग में यूज हुआ, इन दोनों को ऐड किया, 11 मिला. Still we are left with 4 liters. So this becomes your answer. Come to next exercise. This is 2.2. You have to match the following. So this is 3 whole 1 upon 5. इसको multiply करेंगे. So 3 multiply 1 upon 5 will be 3 upon 5. Okay. Now what is its combination? This is 1/5, 1/5, 1/5. 3 times 1/5, 1/5 and 1/5. So this is the right answer. 4 times 1/2. So 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 coming 4 times. Got it? 2 times of 1/3. So 1/3, 1/3. This becomes the answer. And 2 times of half. See, this is half. Half is shaded and here also half is shaded. So this is the right matching. Got it? Let's move further and we come to the next one. यहाँ आपको क्वेश्चन है find the sum of the shaded region. आपको shaded region दिया हुआ है और आपने उसका sum निकालना. Come to the next question. Find the sum of the shaded region in each case. तो यहाँ पर this is 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. That means आपका आंसर बनेगा 4 upon 4. And what do you get? We get 1.
Come to the next one. This is half plus half plus half. That means this is equal to 3 upon 2. इसको हम लिखेंगे 1 whole 1 upon 2. Got it? Next one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means यहाँ पर 5 upon 8 कितनी बार आ रहा है? 3 times. So we can write it like this also. And this will be 15 upon 8. Correct? And इसको 15 upon 8 भी लिख सकते हैं और इसको हम mixed fraction में भी लिख सकते हैं. कैसे? 8 one time is 8 and then 7 upon 8. Correct? Come to the next one. This is 1, 2, 3. 3 out of 8 and again 3 out of 8. So we can write it 2 times of 3 upon 8, which is equal to 6 upon 8, which is equal to 3/4. Got it? Let's move further and we come to next question. Color as directed and evaluated. So we have 2/5 of the stars. Total stars कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? 10 stars. अब हम आते हैं next part पर, next question में. Color as directed and evaluated. इसका मतलब हम पहले इसको शेड करेंगे and इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ है 2/5 of 10. 10 stars दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2 upon 5 multiply 10. You know 5 2 times is 10, तो 2 multiply 2 is 4. इसका मतलब हम 4 stars को शेड करेंगे. Got it? This is your answer. Next one, 3/5 of 15 stars. हमने लिखा 3 upon 5 multiply 15. 5 3 times 15 होता है ना, इसको कैंसिल करेंगे and 3 times 3 9. तो हम यहाँ पर 9 stars को ऐसे कलर कर देंगे, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Next one, 3 upon 4 of squares. कितने squares हैं यहाँ पर? 12 squares. So we write 3 upon 4 multiply 12. 4 3 times is 12. 3 times 3 is 9. So we will shade 9 squares like this. Okay? This way. Next question. Multiply and express the answer in mixed fraction. So we will write down 3 4 times is 12 upon 7. So this is 12 upon 7. 7 1 time is 7 and this will be 5 upon 7. Okay? तो पहले इसको हमने एक फ्रैक्शन बनाया. ये फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन. Let's see another one. 9 3 times is 27 upon 10. So this will be 10 2 times is 20. 7 upon 10. Correct? Now do the remaining parts yourself. Next question पर आते हैं. Find the value in each of the following. 1/3 of 24. कैसे करेंगे? 1 upon 3 multiply 24. 3 8 times is 24. 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर मिल गया 8. ओके, एक और पार्ट करते हैं. 1/3 of 21. So we write 1 upon 3 multiply 21. 3 7 times is 21. अब 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया. करेक्ट? एक और क्वेश्चन करते हैं. This is 3/8 of 8. You'll write 3 upon 8 multiply by 8. 8 and 8 cancel. Your answer becomes 3. Okay? In the same way, next part करेंगे आप. 3/8 of 32. So it will be 3 upon 8 multiply 32. You know 8 4 times is 32. अब इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिला. Correct? Show me your thumbs up. Beautiful. Come to next question. Question 6 देखते हैं. Find the value. 7 upon 8. अब बेटा ये आपको कैसे दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन. हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 3 times is 15 and 15 plus 4 which will be 19 upon 5. Okay? अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया.
9 7 time is 63, 6 carry, 7 1 time is 7, and this will be equal to 133 upon 8 5 time is 40. Okay, so this way you get the answer. अब इसको हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन तो करना आ गया ना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 upon 11 की राइट डाउन 3 upon 11 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया. 5 4 टाइम इज 20, 20 plus 2 is 22 upon 5. कैंसिल करो, 11 2 टाइम इज 22, and you get 3 multiply 2 which is 6 upon 5. बताओ जल्दी से, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर. तो हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. so 5 1 time is 5 and your answer becomes 5 whole 1 upon 5. Correct? And in this way you can do the next question also very similar to it. Now we move further. अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. तो अभी तक हमने सीखा था एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना. अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया और उसको डिवाइड किया 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5, एंड वी हैव शेडेड वन पार्ट ऑफ इट. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ द शेडेड पार्ट. तो क्या करेंगे, हम उसको हाफ में डिवाइड करेंगे. ओके, इसको हाफ में डिवाइड किया तो ये ऊपर का शेडेड पार्ट आ गया. और इस पूरे के कितने पार्ट्स हो गए? अब इस पूरे के हमारे पास 10 पार्ट्स हो गए. And we are talking about only this part. Okay, so what will you say? This is one part out of 10 parts. इसका मतलब half multiply 1/5 बन गया 1/10. Got it? तो अगर हम इसको आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिया हमने. We have to find half of 3/8. पहले हमने एक पेपर का पार्ट लिया, उसके 8 इक्वल पार्ट्स किए. अब 8 इक्वल पार्ट्स के हमने 3 पार्ट्स को शेडेड किया, राइट? तो 1 2 and 3. अब 3 पार्ट को शेडेड करने के बाद क्वेश्चन आता है हाफ ऑफ 3/8. तो इन सबका हमने हाफ हाफ किया, राइट? और 3/8 का हाफ करते ही हमें ये 6 पार्ट्स मिल गए. ओके, एंड देन वी से half of 3/8 will be equal to 3 parts out of total parts. Total parts सब कितने हैं? Total parts हमारे पास अब 16 parts हो गए. So it becomes 3/16. अब इसको देखेंगे कि हर बार हम पेपर तो नहीं कट करने वाले, इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे. तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए अगर आपको बोला जाता है हाफ ऑफ 3/8, इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया. दिस वे यू गेट द आंसर. ओके, देन आफ्टर दिस वी हैव 1/7 मल्टीप्लाई 2/5. सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर वी गेट 2 and denominator multiply by denominator we get 35. Correct? So the rule says that if you have to find A upon B multiply C upon D. So what is the rule? The rule says कि अगर हमें A upon B को C upon D से multiply करना है तो A और C का प्रोडक्ट न्यूमरेटर बन जाएगा और B और D का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर बन जाएगा. And where remember B or D should not be equal to 0. This is the rule. Come at new topic, value of products. Children, we have learned that the value of the product of two whole numbers is always greater than the two original numbers. Suppose हमने 2 और 3 को multiply किया, 2 multiply 3 6. 6 जो है वो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है. लेकिन ये रूल 0 और 1 के साथ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 1 से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका सेम नंबर आता है, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर होगा वो 0 ही हो जाएगा. लेकिन ये रूल आपका फ्रैक्शंस पर अप्लाई नहीं होगा.
Now we multiply the fraction and check whether the product is less than the fraction that are multiplied or it is not. तो यहाँ हमने different fractions के product. अब हमने क्या observe किया इन सब examples में the product of two proper fraction is less than both the fractions. तो ये हमारा first proper fraction है, ये second proper fraction है, और इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो इन दोनों फ्रैक्शन से छोटा आ रहा है. गॉट इट. अब हमने क्या किया, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिए, ये 7/5 3/2 दोनों हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 21/10. ये 21/10 बड़ा है 7/5 से भी और 3/2 से भी. So the result is true for all improper fractions. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. Let us take two other improper fraction. हमने यहाँ लिया 18/11 और 4/3. दोनों improper fractions है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 72/33. And what do you see? हमने देखा कि ये वाला फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन से बड़ा है. So you can verify this result by considering more examples. We conclude that the result is the new number which you get after the product. ये जो नया नंबर होगा आपके दो improper fractions जिन्हें आप multiply कर रहे हैं उनसे बड़ा है. Got it? So in case of improper fractions, the product is greater than each of improper fraction. Now we come to example. So here you have to find the value 1/4 of 3/7 of का meaning multiplication. So 1/4 multiply 3/7. क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. This way you can do another part also. Find the following products. Again same pattern to be followed. यहाँ जो आपको फ्रैक्शन मिला 6/45, it is not the simplest form. और ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रोडक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 6 और 45 दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है and we get 2/15 as the result. यहाँ हमने लिए दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस. पहला काम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बट ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी अभी प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, इसलिए हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. करेक्ट. Come at next example. The cost of 1 liter juice is given ₹55 1/2. You have to find the cost of 2.5 liters of juice. So what will you do? ये जो 1 liter juice की cost है उसको 2.5 से multiply करेंगे. पहले लिखेंगे cost of 1 liter juice that is given and the cost of 2.5 liter juice will be the product of both the numbers. So we convert it into mixed fraction. This is a mixed fraction. We convert it into improper fraction and we solve it. Final result is again written in the form of mixed fraction. तो आपका जब 555/4 रुपीज आया हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में और हम लिखेंगे ₹138. 3/4 is the cost of 2.5 liters of juice. Got it? Now we come to exercise. So here you have the exercise on the same pattern. Please do it yourself. Now we will start with division of fractions. So Arun has 6 chocolates with him. He divides these among 2 of his friends. So how many chocolates will each get? इस 6 को हमने डिवाइड किया 2 से और हमें पता चला कि हर फ्रेंड को 3 चॉकलेट्स मिलेंगे. नाउ वी कैन आल्सो डिवाइड 6 chocolates among 3 children, 6 children and even 12 children. Right?
So how will you divide it? 6 chocolate to 2 children, each one will get 3. अगर हमने 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिलेगी। और अगर 6 चॉकलेट्स हैं, 6 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो हर बच्चे को 1 चॉकलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि 6 चॉकलेट्स हैं और हमें 12 स्टूडेंट्स में उसको डिवाइड करना है। So 6 divided by 12, every child is going to get half chocolate. Now let's take the last case. Here each child is getting half part, right? So half part means 1 upon 2. So why this 1 upon 2 is coming? Okay, let's try doing it. So सबसे पहले हमने 8 को 4 से डिवाइड किया तो हमें 2 मिला। अब यहाँ पर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 4 मिला, राइट? 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो we see that we have got 4 2s in 8 and there is 8 1s in 8. That means अगर हमने 8 को 1 पार्ट में डिवाइड किया so we will say that there are 8 parts. Now 8 squares are divided in 2 equal parts. So let's count the number of halves of 8 square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 16. तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमें आंसर मिला 16. Got it? And इसका मतलब जब हमने 8 को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हाफ पार्ट सब हिस्से में आएगा। ओके, नाउ हियर लेट्स फाइंड आउट 2 डिवाइडेड बाय 1 by 4. तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने 1/4 पार्ट हो गए? यहाँ पर 8 1/4 पार्ट हो गए। और हमने एक नया टर्म सीखा, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो अभी तक जो हमने डिवीजन किया, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम 6 को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो 12 आ रहा है। वो 12 कैसे आ रहा है? 6 को यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट किया और ये जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल लिखा। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा और ये 1/2 का बन जाएगा 2/1। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। सिमिलरली 2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो यहाँ डिवाइड का साइन बना मल्टीप्लाई का साइन और 1/4 का रेसिप्रोकल बना 4/1 and we write down 2 multiply 4 is 8. Got it? ऐसे ही 8 को 1/2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 8 multiply 2/1 and this will become 16. So when you divide 8 by 1/2, we are actually multiplying it by 2/1 and we get the result 16. Similarly, अगर हमने 3 को 1/4 से डिवाइड किया, that means वो हम 3 को multiply कर रहे हैं 4/1 से and we get 12. Got it? Now the numbers 2/1 and 4/1 are obtained by interchanging the numerator and denominator और इसको हम बोलते हैं reciprocal of a number. Correct? Now let's find the product first by continuing with division. तो अगर हमें एक नंबर दिया है 17/1 और इसका रेसिप्रोकल है 1/17, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1। ऐसे ही अगर 1/19 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बन जाएगा 19/1 और हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हमेशा 1 आंसर मिलेगा। That means we conclude that the product of any fraction and the fraction obtained by inverting it, inverting का मतलब reciprocal लिखना, okay, is always 1. तो हमने क्या किया, एक बार 2/3 नंबर लिया, उसका रेसिप्रोकल लिया 3/2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हुआ 1. That means 2/3 is reciprocal of 3/2 और 3/2 2/3 का रेसिप्रोकल है.
ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब हमने क्या याद रखना है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर whose product when multiplied by each other is 1, तो हम बोलते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे 9/11 का रेसिप्रोकल हो गया 11/9, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11/9 multiply 9/11, which becomes 99/99, which is equal to 1. Correct? Now, very important thing to note is that every time the reciprocal of proper fraction is improper fraction and the reciprocal of improper fraction is a proper fraction. अगर आपके पास कोई proper fraction है, उसका अगर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. So now we will continue about the division of fractions. So here we are dividing 8 by 1/4. That means 8 is divided by 1/4. ये division का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो 1/4 है ये 1/4 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 4/1. And we multiply 8 and 4, we get 32 as the answer. Got it? And similarly, if I am dividing 3 by 1/2, so it can be written as 3 multiply and the reciprocal of 1/2, which is 2/1. So we write 3 multiply 2/1, which comes out as 6. So what do we get? We get that when we have to divide the whole number by a fraction, we have to multiply the whole number by the reciprocal of the fraction. Right? अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं division of a fraction by whole number. तो एक fraction को whole number से divide करना है. So let's see, you know how to divide 5 by 2/3. सबसे पहले हम लिखेंगे 5 divided by 2/3 and उसके बाद ये divide sign बना multiply, और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या बन गया 3/2, एंड वी गेट 15/2. अब ये 15/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ एक फ्रैक्शन है 2/3, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम सेम रूल फॉलो करेंगे. पहले डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 5 का मतलब होता है बेटा 5/1, तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, and we get this value which is written as 2/15. Similarly, let's take, we are dividing 1/3 by 4, so same rule, divide बना multiply 4 बन गया 1/4, and we get the answer 1/12. Got it? Come to the next thing, division of a fraction by another fraction. So we can use the rule of dividing is same as multiplying the reciprocal of the divisor. Same rule follow करेंगे to divide the fraction by another fraction. See how to do it. We have taken two fractions. One is 2/3, another is 7/8. So let's divide 2/3 by 7/8. Rule क्या बोलता है? Divide का sign बनेगा multiply, और जिस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 7/8 को हमने उसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया, दैट बिकम्स 8/7, और उसके बाद न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ. वेरी सिंपल. लेट्स टेक एग्जांपल हियर. राइट द रेसिप्रोकल. सी द नंबर इज 13/6. इट्स रेसिप्रोकल विल बी 6/13. Now the number is 15. 15 का मतलब होता है 15/1, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/15. और सिंपल रूल है, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर. गॉट इट? नाउ वी कम टू एक्सरसाइज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 रहता है, और एक नंबर होता है 0. 0 का कभी भी कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. नाउ वी हैव 11 divided by 5/8. We write the same rule. Divide बना multiply, और ये 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5,
and your answer becomes 88/5. ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर. हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में. 5 1 time is 5. You got 3 remainder, and 5 7 time is 35. Again 3 remainder. We get 17 3/5 as the answer. Correct? अगला एग्जाम्पल लेते हैं. 15 divided by 3/4. तो हमने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 4/3. अब 15 और 3 की टेबल में आते हैं, इसको कैंसिल करेंगे. 3 5 times 15. 5 and 4 मल्टीप्लाई हुआ and we get 20. Got it? Come to third example now. Third question is 1 divided by 11 whole 1/9. इसको पहले हम बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 11 9 टाइम इज 99 और इसमें हमने +1 किया तो ये बन गया 100/9. अब हमने इसको लिखा 1 मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 9/100 and your answer becomes 9/100. Got it? Take the next one. We are going to divide 20 divided by 6 whole 2/3. पहले क्या करेंगे? इसको इम्प्रॉपर बनाना है. 6 3 times 18 plus 2 20. So we write down 20 upon denominator, that is 3. So it will be written as 20 multiply 3/20 और ये 20 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 3. Got it? Come to the next one. You have to find the reciprocal. तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 9 4 time is 36 and then +1 37. 37/4. अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो बनेगा 4/37. Got it? Here comes again 8 5 time is 40. 40 plus 3 is 43 and we write 43/5. 43/5 का रेसिप्रोकल बता दो जल्दी से. 5/43. Correct? And this way this is 17. 17 का रेसिप्रोकल होगा 1/17 and when the number is 1/100 इसका रेसिप्रोकल हो गया 100. Got it? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Find 11/7 divided by 22. तो सबसे पहला काम हम इसको बनाएंगे मल्टीप्लाई और 22 की जगह 22 का रेसिप्रोकल लिख देंगे. वो हो गया 1/22. 11 2 times 22 and you get 1/7 as the answer. Correct? Remaining parts आप खुद करेंगे इसके. Come to question 4. We take one part of question 4. We have 2/9 divided by 4 whole 1/2. Mixed fraction है. क्या करना है? Improper बनाना है. Very good. 4 2 time is 8. 8 plus 1 is 9. So this becomes 9/2. Got it? And now we write it as 2/9. Divide sign बदल गया multiply में और इसका रेसिप्रोकल हुआ 2/9. So your answer becomes 4/81. Got it? Now remaining parts I want you to try yourself. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन 5 में दिया है फाइंड आउट विच इज बिगर. क्या करना है? सबसे पहले हमने ये प्रोडक्ट निकालना है. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में ये डिवीजन करना है एंड दोनों केस में आपको 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे. उन फ्रैक्शंस में हमने कंपैरिजन कर लेना है. गॉट इट? अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पर. सो एग्जांपल नंबर 13. There are 60 girls in the hostel. 5/12 of them like to read novels and 2/5 girls ऐसी हैं जिनको मैगजीन्स रीड करना पसंद है and the remaining like to read detective stories. So find the girls who really like to read novels, magazines and detective stories.
तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, राइट? तो अगर हमें पता लगाना है कि कितनी गर्ल्स को नॉवल रीड करना है, we'll write 5/12 of 60. यहाँ हमने लिखा 5/12 of 60. इसका मतलब 5/12 multiplied by 60. And you know 12 5 times is 60. 5 times 5 is 25. ऐसे ही हमें 2/5 of 60 निकालना है, which will tell you कि कितनी girls को magazine read करना पसंद है. So we are writing 2/5 of 60, and when you solve it, you get 24. Now when you add both of them, we get 49. अब 60 में से अगर हमने 49 को subtract किया, we get 11, and we say कि 11 girls ऐसी हैं जिनको detective stories read करना पसंद है. Got it? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14. So here we have the time required to make one bouquet in a flower stall is 3/4 of an hour. The question is find the time required to make 18 such bouquets. So we know that time for one bouquet is given. कितना टाइम दिया हुआ है फॉर वन बुके? इट इज 3/4 hours. एंड द क्वेश्चन इज 18 बुकेज बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3/4 बाय 18 एंड हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. वी गेट 13.5 hours. कम एट नेक्स्ट एग्जाम्पल. A car covered 70 holes 7/8 kilometers in one hole 3/4 hours. You want to find the speed of the car. अब कार की स्पीड निकालनी है. इसका मतलब कार 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करता है. फॉर दैट टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया है उसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में कवर किया है, राइट? सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कवर्ड इज 70 होल 7/8 and the time taken is 1 whole 3/4. तो अब हमने इसको जब सॉल्व किया, इट इज 567/8 डिवाइडेड बाय 7/4. तो ये डिवाइडेड बाय 7/4 था. इसको मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 4/7. एंड व्हेन यू सॉल्व इट you get 40 whole 1/2 kilometers per hour. That means 1 hour में वो इतने kilometers cover करेगा. Let's come to next example. The cost of 1/5 kg of ghee is given, which is 22.5 rupees. You have to find the cost of 2.5 kg of ghee. तो first thing हमें दी हुई है 1/5 kg of घी की कॉस्ट, एंड इससे हम कैलकुलेट करेंगे 1 kg घी की कॉस्ट. 1 kg घी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने 22.5 को 1/5 से डिवाइड किया. जब 22.5 का बन गया 45/2 डिवाइडेड बाय 1/5. इट विल बी रिटन एज 45/2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 5/1, and you get 225/2 rupees. Now this is the cost of 1 kg ghee. आपको निकालना है 2.5 kg घी की कॉस्ट. तो क्या करेंगे? इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब 2.5 को हमने फिर से देखा कि ये मिक्स फ्रैक्शन है. We are going to convert it into a improper fraction. That becomes 5/2 मल्टीप्लाई 225/5. ये 5 से 5 कैंसिल हुआ और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. हमें मिला 281/1/4 रुपीज. इंटरेस्टिंग. आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं. चलो अब आती है एक्सरसाइज की टर्म. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. In a school there are 1,800 children. Half of them are studying in primary classes. 1/3 of them are studying in middle school and the remaining are studying in high school. So the question is, what fraction of children are in the high school? So what will you do? The question is, you are going to first find out ki 1/2 plus 1/3.
ये स्टूडेंट्स हमारे प्राइमरी और मिडिल के स्टूडेंट्स हो गए, और 1 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट अ फ्रैक्शन जो हमें बताएगा कि हाई स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम लिखेंगे इसका LCM which is 6, 3 plus 2 which is 5 and 1 minus 5 by 6 is equal to 1 upon 6. So we say 1 upon 6 बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं. Now find the students studying in primary classes. Primary classes के students calculate करने के लिए we will write half of 1800. This is half of 1800 which comes out as 900. That means 900 students are studying in primary classes. अब हम निकालेंगे मिडिल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं. That is equal to 1/3 of 1800 and 3 6 times 18. तो हमें यहाँ पर मिल गए 600 students, right? अब 900 और 600 को प्लस किया तो हमें मिला 1500 और 1800 में से 1500 सब्ट्रैक्ट किया तो हाई स्कूल के बचे हुए स्टूडेंट्स आ गए which is equal to 300 students, right? Now we come to next question. In a basket there are 140 fruits. 1/5 of them are pineapple, 1/4 of them are apples, half of them are oranges, and the remaining are bananas. So you have to find the different fruits in the basket. सबसे पहले हम निकालेंगे 1/5 of 140, right? So 5 2 times is 10 and 5 8 times is 40. तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि हमारे पास 28 पाइनएप्पल्स हैं. फिर हम आते हैं 1/4 of 140, right? 4 3 times is 12, 2 remainder, 4 5 times is 20, and we get 35 are apples. Half of them are oranges. 140 का हाफ क्या होता है? That's 70, right? अब आपने बनानास निकालने हैं. बहुत सिंपल रूल है. यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ. इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको 140 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आपको पता चल जाएगा कितने बनानास हैं. गॉट इट? सो वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. 5/8 of total number of tickets sold for the circus show were the tickets for the children. Find the number of tickets sold for adults if the number of tickets sold were 3,200. So look here, if 5/8 tickets are sold for children, सबसे पहले हम निकालेंगे 5/8 of 3,200. 8 4 times is 32 and we get 2,000 tickets are tickets for children. अब टोटल टिकट्स हमारे पास हैं 3,200 और उसमें से 2,000 टिकट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए है. तो रिमेनिंग टिकट्स क्या हो गए? 3,200 minus 2,000 and we get 1,200. So these are the tickets for adults. So we write down here tickets for adults, right? This is your answer. Next question. Now we have 2.5 meter long cloth is required to make one banner. Find the cloth required to make 150 banners. So total cloth required क्या होगा? 150 banner बनाने हैं तो 150 को हम multiply करेंगे 2.5 से, right? And it will be 150 multiply. इसको हम लिखेंगे कैसे? Improper fraction में. 2 2 times is 4 plus 1, it is 5/2 and ये आया 75. So 75 multiplied by 5, right? So 5 5 times is 25. To carry 5 7 times is 35 plus 2, 375 meters. This becomes your answer. Correct? Next question. It took 1/4 of an hour for Ramani to stitch an embroidery pattern on the sari. एक साड़ी पर embroidery pattern बनाने के लिए उसको 1/4 of the hour लगता है. If Ramani has to stitch
135 such patterns, how much time in hours will she take? So what will you do? You are going to multiply 1 upon 4 with 135. Got it? And you'll cancel it here. 4 3 times is 12. 1 remainder. Again 4 3 times is 12. And 13, 14, 15. So we get 3 upon 4 hours. Got it? So this is how you calculate the answer. Your answer will be 33 3 upon 4 hours. In this time, she is going to do the stitching of 135 patterns. Got it? Now we come to next question. Next question पढ़ते हैं चलो. Every student participating in the mass drill 2 upon 5 meter of ribbon. If the total length of the ribbon used is 240 meter, find the number of students participating in the drill. पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ कि हर बच्चा जो ड्रिल में पार्ट ले रहा है उसको रिबन चाहिए. कितना रिबन चाहिए? 2 upon 5 मीटर रिबन चाहिए. अब इतना रिबन हर बच्चे को चाहिए और टोटल रिबन हमारे पास 240 मीटर है. तो 240 मीटर से कितने बच्चों की रिबन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? वो कितने बच्चे होंगे जो ड्रिल में पार्ट ले रहे होंगे? तो हम क्या करेंगे बेटा, 240 को हम डिवाइड कर देंगे 2 by 5 से. पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम. 5 2 टाइम इज 10. 10 plus 2 is 12 upon 5. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. 240 एज इट इज आएगा, राइट? और 5 upon 12. 12 2 time is 24. So we say there are 100 students. Got it? तो हमने जब 240 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया कि एक बच्चे को कितना रिबन चाहिए, which is 2 whole 2 upon 5. So we will come to know कि हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 240 मीटर रिबन यूज किया. करेक्ट? नाउ वी मूव फर्दर and let's say we come at question 8 now. Car covers 15 kilometer in 1 liter of petrol. 1 liter में कार 15 kilometer distance cover कर रही है. Find the distance it can cover in 1 upon 5 liter of petrol. तो हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 upon 5 से. करेक्ट? और नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 100 किलोमीटर. अब यहाँ पर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और 100 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें कितना पेट्रोल चाहिए? तो हम 15 से 100 को डिवाइड कर देंगे. गॉट इट? एंड वी राइट डाउन 100 मल्टीप्लाई 1 upon 15 which is equal to 20 upon 3. 3 6 time is 18. 2 upon 3. This is the petrol required. Right? अब हम आते हैं next topic पर, which is decimals. So children, we have learned to compare decimal numbers. We have learned addition and subtraction also. कि decimal number को कैसे add करते हैं, कैसे subtract करते हैं. और अगर कोई फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होता है तो हम उन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, या उनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस. राइट? अब अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है 2735 upon 100, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं तो हम इस नंबर को लिखेंगे 27.35. इसका मतलब राइट से 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ जाएगा. राइट? और इस नंबर को अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है. ये जो 3 है बेटा, ये 3 आता है 10th प्लेस पर 1 upon 10. और ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर है 5, वो आएगा 5 upon 100 प्लेस पर. तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगी 2 10s, मतलब 2 multiply 10 plus 7 multiply 1
plus 3 multiply 1 upon 10 and 5 multiply 1 upon 100. Got it? So what do you observe here? यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर अगर आपके पास नंबर है 27.35 और दूसरा नंबर है 27.3, तो अगर 27.3 है तो हम उसको 27.30 लिखेंगे, जो 27.35 से छोटा होगा. Got it? ऐसे ही हमने दो नंबर लिए 27.35 और 27.356. तो ये जो 35 है ये 350 होगा और हमने ऑब्जर्व किया 27.356 is a bigger number. Got it? Now we move ahead and we will talk about the exercise here. तो पहला क्वेश्चन है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे. तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 8 100 प्लेस पर है तो 8 मल्टीप्लाई 100. 7 का कौन सा प्लेस है? 10 प्लेस, so 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1. अब हम आ जाते हैं डेसिमल प्लेस पे. 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 और 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000. गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है 100 प्लेस पर, इसलिए हमने 0 को नहीं लिखा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. जब भी कोई नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले उसके डेसिमल के बाद के प्लेसेस इक्वल कर लेते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ पर भी 0. राइट? अब हम देखते हैं डेसिमल से पहले के प्लेसेस. सबसे छोटा प्लेस है 0. राइट? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है. और इन दोनों नंबर्स में से हमने 10th प्लेस को कंपेयर किया तो ये वाला प्लेस सबसे छोटा है. लाइक इन सब नंबर्स में सबसे छोटा नंबर मिल गया और सेकंड प्लेस पर आपको मिला 0.321. अब हम आते हैं डेसिमल से पहले 3, 30, 1 and 3. दैट मीन्स दिस विल कम ऑन थर्ड प्लेस. एंड 3 वाले दो नंबर्स हैं यहाँ पर, एक 3.210 और 3.102. सो दिस इज योर फोर्थ नंबर. समझ आया? और इससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 3.21. एंड सबसे बड़ा नंबर जहां होल नंबर हमें 30 मिला हुआ है, तो ये आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर विच कम्स ऑन 6th प्लेस. गॉट इट? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.032. It is smaller than second number 0.321. और इसी तरह से सब नंबर्स को हम प्लेस दे देंगे. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट में 5 इज जस्ट आफ्टर डेसिमल, तो इसकी प्लेस हो गई 5 अपॉन 10. यहाँ पर 5 है 100th प्लेस पे, so it is 5 upon 100 and here it is on the third place. Third place मतलब 1000th place, so we write down 5 upon 1000. Got it? Come to next question. Express the following in rupees as decimals. Now this is 50 rupees 5 पैसा. बहुत ध्यान से समझेंगे. 5 पैसा का मतलब 50 कभी नहीं होता. It is 05, so we write it as 50.05 rupees, right? And here it is 550 पैसा, so last 2 digits पैसे में आएंगी बेटा, और उसके बाद ये जो 5 है वो रुपीज में आएगा. So we write 5.50 and you can put a sign of rupees here. Next is 555 पैसा. It will be written as rupees 5.55. Correct? So we come to fifth question now. Here you have to first write 85 milligrams into grams. We have 85 milligrams. हमने 85 milligrams को grams बनाना है, तो हमने इसको 1000 से divide किया, ये grams है. Okay? So it is written as 0.085 grams. Okay?
Now you have to convert grams into kilograms. इसका मतलब फिर इसको दोबारा से 1000 से डिवाइड करना है. You write 0.085 divided by 1000 and it becomes kilogram. Okay, so यहाँ पर क्या आएगा, 3 places और decimal आगे जाएगा. That means 1, 2, 3 zeros और आ गए और 085. Okay, this is kilograms. Understood? Now we come to next question. You have to express in liters. आपको मालूम है कि कितने मिलीलीटर्स मिलकर 1 लीटर बनाते हैं? It is 1000 milliliters. तो हम यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे and we get 0.080. यहाँ 3 मिलीलीटर्स दिया हुआ है, तो 3 मिलीलीटर्स को जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.003 liters, and this is now divided by 1000. You get 0.330 liters. Correct? Come to the next question. You have to fill in the blanks. 6 millimeters to be converted into centimeter. जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने हम उसको लिखते हैं 6/10, which is equal to 0.6. अब इस 0.6 को सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. So again this will be equal to, I'll just write it again. So this is 0.6 centimeter और 0.6 सेंटीमीटर को डिवाइड किया हमने 100 से, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएंगे मीटर्स में. एंड यू राइट डाउन 0.6 divided by 100. This becomes meters. और इसको कैसे लिखेंगे? It will be 0.006 meters. Got it? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालने के लिए हम इन 4 साइड्स को ऐड कर देंगे. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aruna has rupees 158.75 in her purse. She spent 79.40 rupees to buy vegetables. How much money is left with her? So, आपके पास total money दिया हुआ है 158.75. This is rupees, this is पैसा. और कितना money spend हुआ? 79.4. तो यहाँ हमने लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ पर 0 ऐड कर दिया और अब हम सबट्रैक्ट करेंगे. 5 minus 0 is 5, 7 minus 4 is 3, 8 minus 9 is not possible. हमने यहाँ से borrow किया and this becomes 9 and this is 79 rupees and 35 paisa. Got it? And this way you have learned the subtraction also. अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स करेंगे. यहाँ पर सी द एग्जाम्पल हियर. द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज rupees 8.75 एंड सुमाना वांट्स टू बाय 4 सच पैकेट्स. हाउ मच मनी डज शी हैव टू बाय? तो पहली चीज हमें क्या दी हुई है कि 1 पैकेट की कॉस्ट दी हुई है और हमें 4 पैकेट्स की कॉस्ट निकालनी है. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 पैकेट्स की कॉस्ट मिल जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी हुई है एंड वी वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर मिल्क. यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो इन दिस वे यू गेट द रिजल्ट बाय मल्टीप्लाइंग. अब हमने क्या करना है? सपोज यू वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3.2 and 6. बहुत सिंपल मेथड है. पहले डेसिमल हटाकर हम इसको 3.2 को लिखेंगे 32/10. अब ये फ्रैक्शन बना, 32/10 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, ये बना 192/10 और डेसिमल आते ही हमने इसके राइट साइड में 1 प्लेस पर डेसिमल लगाया क्योंकि हमने इस 10 को रिमूव किया है. गॉट इट? अब एक और एग्जांपल देखते हैं. 8.75 और 4 को मल्टीप्लाई करना है. पहले 8.75 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने वापस से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया.
Now we see we have two numbers 0.3 and 0.4. पहले इसको लिखा 3/10, इसको लिखा हमने 4/10. 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12/100 और हमें मिला 0.12. Got it? अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमने नंबर लिया 0.2, 0.1, 0.3. इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा. ये बना 2/10, ये लिखा हमने 1/10 और इसको क्या लिखेंगे 3/10. अब सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है. 2, 1 और 3 हमें मिला 6 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आएगा 1000. अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 3 zeros. वेरी गुड. और यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट है तो इसको आगे हमने 2 zeros और लगाए और फिर हमने डेसिमल पॉइंट पुट किए. गॉट इट? इन दिस वे वी गेट द प्रोडक्ट. अब हम एग्जाम्पल्स में क्या मेथड सीख रहे हैं कि सिंपली हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखेंगे डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 10 है, 100 है, 1000 है, कितने जीरोस हैं और उतने प्लेसेस पर हम डेसिमल को पुट करते हैं. गॉट इट? Now we have another method. We are going to multiply a decimal number by 10, 100 and 1000. कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रूल सिखाऊंगी, उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो सिंपली आपका डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा. अगर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका डेसिमल 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा. 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3 zeros है तो उसका डेसिमल 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा. लेट्स सी द एग्जांपल. हमने एक नंबर लिया 2.145. इसको फर्स्ट टाइम हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर डेसिमल हटकर 1000 आया डिनोमिनेटर में और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया एक जीरो कैंसिल आ गया और नीचे 2 zeros बचे. अब 2 zeros बचने के बाद हमने यहाँ पर 2 प्लेसेस पर डेसिमल लगा दिया तो आपका नंबर 2.145 से बन गया 21.45. तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसका डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो गया और ये बना 21.45. इसी तरह अगर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ये डेसिमल 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 214.5. एंड यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी डू इट इन अ सिंपल फॉर्म. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट व्हेन 18.732 is multiplied by 2, 20 and 0.2. तो सबसे पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. गॉट इट? हमें मिला 37.44. कोई पैटर्न यूज करेंगे. अब नेक्स्ट टाइम हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमने इसके डेसिमल को 1 प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया और हमारा आंसर यहाँ 37.44 आ रहा था और ये बन जाएगा 374.4. राइट? और ऐसे ही अगर हमने इसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर्स तो ये रहेंगे 3744 एंड क्या होगा डेसिमल इसका 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3.744. Understood? Now we move further. We are going to do the example. First example देखेंगे 37.5 multiplied by 1.96. पहले इनको ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई किया हमें मिला 73,500. अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे 2 and 1 3 और 3 प्लेसेस पर हमने डेसिमल लगाया तो आपका आंसर बन गया 73.5. करेक्ट? एक और एग्जांपल हमने लिया 3.712 मल्टीप्लाई 0.314. सिंपल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 3712 मल्टीप्लाई बाय 314 और जो आंसर आएगा उसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पर हमने डेसिमल को पुट कर दिया. इंटरेस्टिंग है ना? आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट हमें दी हुई है और हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ 25 चॉकलेट्स. क्या करेंगे 35.50 को
25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरी सिंपल वर्क, राइट? एंड नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज which I want you to try yourself. Got it? अब हम आ जाते हैं डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर्स. तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं. द लेंथ ऑफ क्लॉथ इन रोल. पूरा एक रोल है कपड़े का, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 7.5 मीटर्स एंड समीरा को 2.5 मीटर क्लॉथ चाहिए एक शर्ट स्टिच करने के लिए. अब क्वेश्चन है कि इस 7.5 मीटर से कितनी ऐसी शर्ट समीरा स्टिच कर पाएगी. तो हम क्या करेंगे, 7.5 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे एंड वील कम टू नो कि समीरा इज एबल टू स्टिच 3 shirts out of it. Now let's learn how to divide the decimal numbers. So first we'll divide them by 10, 100 and 1000. तो अगर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था बेटा, ऐसे ही डिवीजन का हम शॉर्ट रूल सीखते हैं. अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट जाएगा क्योंकि 10 में एक जीरो होता है. ऐसे ही अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी नंबर दिया है उससे 2 प्लेसेस लेफ्ट मूव करेंगे, तो ये डेसिमल यहाँ 2 प्लेसेस लेफ्ट आ जाएगा. ऐसे आंसर आ जाएगा. और अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट आएगा, तो यहाँ पर 0 एक और एक्स्ट्रा लग जाएगा. लेट्स सी हाउ इट्स हियर. सो दिस इज हाउ वी shift the decimal places to left by 1 place, 2 place, 3 places. Correct? So now we have this 142.7. We are going to divide it by 10. तो आपका आंसर क्या आएगा? 14.27. Got it? अभी पूरा क्लियर हुआ अच्छे से? अब हम आगे चलते हैं. डिविजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. तो हमने सबसे पहले एक डेसिमल नंबर लिया 12.56. We are going to divide it by 4. तो पहले इस डेसिमल नंबर को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ये डेसिमल फ्रैक्शन बना 1256 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 4. अब इस डिवाइड का साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई और 4 का रेसिप्रोकल 1/4. और जब हमने इसको सॉल्व किया हमें आंसर मिला 314 अपॉन 100 which becomes 3.14. एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर हमें नंबर दिया है 374.4 डिवाइडेड बाय 12. तो इसमें डेसिमल के पास 1 प्लेस है, तो ये बना 3744 divided by 10 and then it is divided by 12. So इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे और इसको जब सॉल्व किया तो हमें मिला 31.2. This becomes your answer. Okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिविजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. आपको एक डेसिमल नंबर से दूसरे डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है. सो आई हैव अ एग्जांपल हियर. वी आर डिवाइडिंग 10.56 बाय 0.3. तो सबसे पहले इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन बनाया, फिर इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाया और इसको 2 फ्रैक्शंस के डिवीजन के रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व कर दिया. गॉट इट? सिमिलरली यहाँ पर भी 37.96 divided by 7.3. First time we make it a decimal fraction divided by second decimal fraction और फिर डिवाइड का साइन बना मल्टीप्लाई और ये बना रेसिप्रोकल और सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल गया. गॉट इट? So in this method we are going to convert both the decimal into fractions and then we solve it as the division of 2 fractions. Understood? अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल. यहाँ पर हमने डिवाइड करना है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके बाद 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है. तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया. 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या पर्पस है पहले मैं आपको ये बताती हूँ. तो यहाँ जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमने
0.5 मल्टीप्लाई 10 करके डिनोमिनेटर को डेसिमल नहीं रहने दिया, इसको एक ऑर्डिनरी होल नंबर बना दिया। और अब हमने डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड वाला रूल फॉलो कर लिया। 32.5 बन गया 325 अपॉन 100 अपॉन 10 सॉरी, multiply by 1 upon 5 and when you solve it you get 6.5, right? तो हमने यहाँ पर इस 5 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1 upon 5 से, मतलब 5 के रेसिप्रोकल से, ओके। एंड दिस वे we get the answer by doing the ordinary division of 325 divided by 5. Got it? अब हम आते हैं आगे। Now a decimal point is placed in the quotient when the number after the decimal point in the dividend is brought down. तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है 27.525 divided by 0.05. सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 places of decimal और यहाँ पर 3 places of decimal. तो यहाँ पर बिकॉज 2 places of decimal हैं जिन्हें हम रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ आपके पास 5 रह गया और यहाँ डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस पर राइट पर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमें नंबर क्या मिला 2752.5 डिवाइडेड बाय 5 और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा 550.5. Got it? This is how we solve it. Now you have a table. You have to fill this magic box. Okay. Come to next example. You have to divide 5.134 by 1.7. Denominator में कितने decimal places हैं? 1 decimal place. इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया और ये 1.7 बन गया 17. अब हमने 51.34 को 17 से डिवाइड किया and we get the answer 3.02. Got it? एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1817.286 divided by 217.90. We have 2 places of decimal in the denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेसिमल प्लेस हटाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट? और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डेसिमल प्लेस आ गया यहाँ पर 18,172.86 अपॉन यहाँ का डेसिमल प्लेस गायब हो गया 2179 से डिवाइड किया and we get 8.34 as the answer. Got it? Example लेते हैं real life का। If the cost of 0.5 liter of oil is given as rupees 56.25, you have to find the cost of 1 liter of oil. क्या करेंगे? पहले 0.5 लीटर ऑयल की कॉस्ट दी हुई है, अब यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 56.25 को 0.5 से डिवाइड करेंगे and we get 112.5 rupees. Okay. After this, a car takes 3.2 hours to cover 132.8 kilometer. Find the distance it can cover in 1 hour. So distance covered in 3.2 hours, it is given 132.8 kilometer and distance covered in 1 hour 132.8 को 3.2 से divide करेंगे and we get 41.5. Got it? So now you have an exercise. I want you to try these questions yourself. हमने बहुत सारे examples किए हैं CQ पर based. आप इन्हें questions को अपने आप try करें। अब हम आते हैं MCQ पर। Let's read the first question. So first question is the value of 1.6 multiply 1000. So यहाँ पर 3 zeros and decimal is going to shift 3 places to the right. आपका answer हो जाएगा 1600. That is B is the correct answer, right? The value of 2.03 multiplied by 2, it will be 4.06. And the value of 10 upon 3, it is 3.333 and it will come like this, okay? And after that, we have the value of 15 divided by 2. So when you divide 15 by 2, you get 7.5. C is the right answer, okay? And after this, you have to find the value of 1.1
मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप क्या करने वाले हैं, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 1 टाइम इज 11 और डेसिमल आएगा 1 and 2 places from the right, so your answer will be 0.11। Got it? तो इस तरह से हम अपने जितने भी रूल्स सीखे हैं उनको फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I hope you enjoyed learning, and now your duty to take up the pen and practice what all you have learned in the video. Okay, so see you later. Goodbye.